Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Saeed Orakzai and I am the Chief Market Development Officer at Special Technology Zones Authority. Essentially, my role is to assist 5, 6 areas. The first one is investments into technology zones, specifically zone developers. The second is assisting technology companies and provide regulatory advisory, regarding which this session is also a part of, jisme any technology company who comes into our zone or wants to move in our zone and wants to apply for a zone enterprise. So Hamara department, the market development, also assist them in that advisory. And inshallah, within this presentation, we'll be doing this. Apart from this, my department, the market development, looks after public-private partnerships, overall partnership with the industry, academia, and government locally and internationally. और उसके अंदर inshallah we'll have some information sessions going forward, और जिसके अंदर हम बताएंगे हमारे international partnerships का भी और हमारी global strategy for technology zones. The fourth one is marketing and outreach. Fifth one is strategy, business strategy and strategic planning. कि कितने zones जो हैं वो किन शहरों में आने हैं अगले 6-7 साल के अंदर. So ये overall जो market development है वो एक external department है Special Technology Zones Authority का. And essentially we interface with the industry and all the licensing issues. So I welcome you all to this session. This session is divided into 3 phases. One is the overall special technology zones across the globe क्या हो रहा है दुनिया में. उसके बाद STZA क्या है. So these are going to be 3-4 minutes each. Then majority chunk of 20-25 minute session will be related to the zone enterprise licensing, and then we will have a Q&A. So with this and अभी आप लोग जो है थोड़ा सा मैं वो बता दूं Q&A में जब session finish हो, when we finish the session we'll open Q&A, so you can raise your hands and we will unmute accordingly. We are also expecting a large participation, तो उस वजह से ये थोड़ा सा हमने control में रखा हुआ है so that हम phase wise वो कर सकें. उसके अलावा भी rest assured after this session we'll also disclose, you can get in touch with us very easily and set up your exclusive sessions related to your application. So with this I'll start. So special technology zones is not a new concept. It's an old one, and the world has moved towards innovation clusters. उसके एक example cluster की जो है वो इंडिया में बेंगलोर की है, बीजिंग में ज़ीप पार्क की है, and to a very large extent we are building certain partnership across the globe with these clusters and tech zones as well. But overall दुनिया के अंदर अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्क से देखें तो it has now exceeded the number of 3,000. And alhamdulillah 2 years back when special technology zones came into being, तो अभी हमारे पास तकरीबन 16 zones हमने notify कर लिए. बट ये मैप 2021 का हम दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक भी उस तरह का टेक्नोलॉजी पार्क नहीं था. एंड विल आल्सो टच अपॉन द टेक्नोलॉजी पार्क्स दैट वी हैव. सिमिलरली टेक जोन्स अराउंड द वर्ल्ड अगर आप ये देखें तो ये एस्थेटिकली अपीलिंग भी होते हैं, ये डाउनटाउन शहरों में होते हैं, और इनकी ओनरशिप भी हमने यहाँ पे प्लेस किया कि ये पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट भी हो सकता है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं. एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारे जोन जो हैं वो भी इसी मिक्स ओनरशिप टाइप में आपको मिलेंगे. Similarly, another very important aspect is the third industrial revolution and the fourth industrial revolution. And from this session, it is not just कि हम आपको zone enterprise license का समझाना चाहते हैं. We also want you to understand how we are going to build this destination. And you're all our ambassadors because you are a technology community and we are a technology zone regulator. So together we build that narrative in terms of why technology zones are so important and why we need to hyper focus on rolling this out. So ये अगर ग्राफ देखे, मैं सिर्फ बड़े हाई लेवल आपको वो बता दूं, हम सब ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सुना है. 2012 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का लॉ आया और अभी हमारे पास 3-4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑपरेशनल है. सो वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बने थे क्योंकि मास प्रोडक्शन जो है दैट बिकेम्स अ नॉर्म इन 1970s and 80s. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि देख कि if you can't reform a whole country, why not create these islands of excellence where this high tech production normal mass production can take place. और to very large extent जो है ये
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ड्रिवन था मास प्रोडक्शन पे। सो ये इंडस्ट्रियल पार्क्स में पहले मैनिफेस्ट हुआ 40s 50s में, फिर इकोनॉमिक जोन्स बने, फिर क्लाइमेट चेंज का मसला आया, पोल्यूशन का, क्योंकि मास प्रोडक्शन से जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना प्रोडक्शन की वजह से, तो उस वजह से फिर इको इंडस्ट्री पार्क्स आए जिसमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का जो है वो इंट्रोडक्शन हुई। बट एसेंशियली इकोनॉमिक जोन जो है उसमें होता क्या है, उसमें प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस लेट से ये कप इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस कप बनाने के लिए एक मशीनरी इंपोर्ट हुई होगी, फिर ब्लू कॉलर लेबर आया होगा, और ब्लू कॉलर लेबर काम करते हैं, इसका रॉ मटेरियल जो है वो कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ डोमेस्टिकली, और फिर ये यहाँ से कुछ डोमेस्टिकली सप्लाई होता है, कुछ डोमेस्टिक कुछ इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का भी ये होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें इंसेंटिव्स इस वजह से इंट्रोड्यूस होते हैं ताकि वो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बना सके और इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट कर सके। एंड चाइना हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस व्हेन इट कम्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर ये लेट 90s और अर्ली 2000s में कॉन्सेप्ट आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, बिकॉज टेक्नोलॉजी स्टार्टेड डिसरप्टिंग almost all legacy industries, whether that be production, whether that be health, whether that be agriculture, and R&D and technology became the center stage for all new industry or disrupting existing industries, and that's where the science and technology parks emerged. But countries like China, South Korea, India, they have grown to a certain critical base where they're exporting more than $100 billion of science and technology goods. तो वो फिर छोटे छोटे शहर बनना स्टार्ट हुए। तो जिस तरह मैंने जी पार्क का जिक्र किया है, जी पार्क इन चाइना is 726 square kilometer. So it's 3 times the size of Islamabad. It's just a one zone, and it has around 50,000 technology, science and technology companies, और तकरीबन 16 member parks हैं. So these clustering happens, और टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है वो फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बनाए गए, जहां पे आपका मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लांट एंड मशीनरी या ब्लू कॉलर लेबर या रॉ मटेरियल नहीं है, वहां ह्यूमन टैलेंट इज योर फर्स्ट इनपुट, द सेकंड इनपुट इज फास्ट इंटरनेट, द थर्ड इनपुट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज। सिमिलरली लोकेशंस, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स वर्टिकली ग्रो करते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मशीनरी के लिए बने हैं तो वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, और ह्यूमन टैलेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकली मूव करते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये शहरों से बाहर होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, क्योंकि मास प्रोडक्शन में आपके इन्वायरमेंटल इस तरह की चीजें होती हैं जो कि, और इनको साइजेस लार्ज चाहिए होते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक जोन के बारे में सुनेंगे तो 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क 3 कनाल या 5 कनाल या 10 कनाल पे उन्होंने 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाई होगी। बट दैट वुड बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी, बिकॉज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी इन द अर्बन सेंटर्स or close to universities is because their main input is human talent, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये काफी ज्यादा है, और हमारे जहां पे टैलेंट अवेलेबल होगा और जहां पे व्हाइट कॉलर टैलेंट मूव करना चाहेगा वहीं पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क फिजिबल होता है। सो दैट्स व्हाई टू अ वेरी लार्ज। और दूसरा वो ये है कि चूंकि व्हाइट कॉलर लेवल होता है तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरह रफ एंड टफ नहीं बनाए जाते। दे हैव ग्रेट फसाड, ग्रेट एनवायरनमेंट, ग्रेट आर्किटेक्चर, ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज टैलेंट रिटेंशन का भी बहुत बड़ा मसला ग्लोबली चल रहा है। सो ऑल आर टेक जोन्स एज अ रेगुलेटर वी इनेबल देम टू बी एट अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ताकि वहां पे हमारे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है वो काम करने के लिए आए तो वो खुशी से आए। So with this global context, let me sort of introduce special technology zone in a very short way. The first one is the we are Act of Parliament, जो कि approve हुआ 2021 में unanimously by all political parties. It is an autonomous body established under cabinet division. We have Honorable Prime Minister as the president of SEDS's Board of Governors, which makes us a very unique authority, because there are very few authorities जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। तो हमारे बोर्ड पे प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एंड देन आवर बोर्ड इज अ वेरी पावरफुल वन व्हिच कंसिस्ट ऑफ around 16 government officials, including all chief secretaries, FPR chairman, secretary, industries. So very powerful technology stakeholders from the government side and administrative stakeholders from the government side. And similarly, then we have international private sector leaders as our independent board members,
who specializes in various segments and influence our policies as well. Essentially, we are facilitator and regulator of public-private and public-private technology zones in all parts of Pakistan. By facilitator, what we mean is जो मैं अभी कर रहा हूँ, facilitation. So we're gonna show you कि क्या application की requirements हैं, and we want to pass on these great 10 years incentives to all the technology companies. और regulator हम तब आते हैं जब आपको license मिलता है 10 साल का, तो जो भी उस एप्लीकेशन के अंदर आप कमिट करते हैं उस पे आप हमें एनुअली रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैवंट अचीव्ड एंड दिस फॉलोइंग आर द रीजंस. इसमें रेस्ट एश्योर्ड वी डोंट पेनलाइज कि जो है आपने कुछ चीज अचीव नहीं की. आवर जॉब इज टू गेट दैट मार्केट इंटेलिजेंस एंड ब्रिंग इन न्यू पॉलिसीज एंड program the ecosystem as such that you are able to achieve your growth. To my right, we have our mandate. हमारा mandate है approve, notify, license zones and zone entities. हम खुद ना टेक्नोलॉजी बिजनेस करते हैं और ना हम टेक्नोलॉजी जोन्स बनाते हैं. हमारा काम है टेक्नोलॉजी कंपनीज को लाइसेंस करना और टेक्नोलॉजी जोन जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहे हैं उनको लाइसेंस करना एंड उनको रेगुलेट करना. वी डोंट गेट इनटू द बिजनेस because we don't want crowding out effect, and to a very large extent SEDSA's role will be towards regulatory and not getting involved in business. Similarly, our another mandate is develop independent rules and regulations for special technology zones. और इसके अंदर ये है कि एक जब हम टेक जोन के अंदर एक एरिया को या एक बिल्डिंग को या एक लैंड को जब टेक जोन नोटिफाई करते हैं तो वहां पे हमारे इंडिपेंडेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. एंड देन वी प्रोवाइड फिस्कल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स. वो मैं आगे टच करूंगा कि जब आप लाइसेंस लेंगे तो आपको कौन से इंसेंटिव्स मिलेंगे. And then another mandate is enable development of Pakistan's technology ecosystem. वो यही है कि this is not just a one-time engagement. We are planning to build a very strong community of technology companies जिनको फिर हम इंटरनेशनली भी कनेक्ट कर पाए, मुख्तलिफ टेक जोन्स के अंदर प्लेस कर पाए, इन टेक जोन्स की इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कर पाए. So to enable that development, so it's going to be a collective effort, and as a regulator, we plan on taking our private sector and public sector internationally, connect them and enable that ecosystem that we all are intending to develop. अच्छा जी, हमारा विजन जो है वो है enable a globally competitive knowledge and technology ecosystem, and I'll touch आगे. And then mission हमारे दो हैं. नंबर एक है facilitate and regulate the development of world-class private and public technology zones to improve countries' global competitiveness. And number two is enhance ease of doing business and cost effectiveness for local and global technology companies in SDGs to boost investments, innovation, technology development, job creation, import substitution and tech exports. और to a very large extent जो लाइसेंस का भी रोल होगा वो इन्हीं विजन और मिशन के अकॉर्डिंगली है. आर स्ट्रेटेजी जो जोन्स की है वो पिछले उसमें हमने 3 स्टेजेस में हम जोन्स रोल आउट कर रहे हैं. एक है शॉर्ट टर्म जिसमें हम ये देख रहे हैं क्योंकि टेक जोन्स विल टेक अ सिग्निफिकेंट टाइम टू डेवलप. आप अगर अपना घर भी बनाए उस पर भी 1 साल लग जाता है. सो दीज आर बिग जोन्स एंड मिनिमम जो सबसे छोटा जोन होता है वो 2.5 लाख स्क्वायर फुट का होता है जिसमें तकरीबन 3-4 साल लगते हैं. सो एक चीज हमने ये की कि हमने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया और हम ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टेक्नोलॉजी जोन बन सकता है, क्योंकि हमारे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है. उसके अंदर हमने काफी आइडेंटिफाई किए और उसका मैं आगे दिखा भी दूंगा कि शॉर्ट टर्म में तकरीबन 11 जोन्स हमने ऑपरेशनल कर दिए और फिर मिड टर्म में हमारे तकरीबन 3 और जोन्स बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म में 2 बड़े पार्सल्स 100 एकड़ प्लस हमने नोटिफाई किए हैं जो कि एडवांस स्टेजेस पे हैं टू फाइनेंशियल क्लोज. सो टू वेरी लार्ज एक्सटेंट अभी आपको छोटे नजर आएंगे जो अभी मैं आगे टच भी करूंगा, 15 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़, बट दीज आर ऑपरेशनल. एंड अमंग आर ऑपरेशनल जोन्स जो 11 ऑपरेशनल किए, 25,000 टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड अराउंड 150 कंपनीज ऑलरेडी सेट देयर. But mid-term we will have new zones that are under construction, and long-term we'll have these small cities. And वो लेकिन उसमें considerable time लगेगा, 5 साल 7 साल. Similarly, एक और चीज जो हम follow करते हैं within our zone वो है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, जिसके अंदर हर एक जोन में आपको गवर्नमेंट के रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज भी नजर आएंगी, उसके रेलेवेंट एकेडेमिया और इंडस्ट्री. यू शुड दिस स्लाइड इज वेरी क्रिटिकल. वो इस वजह से क्योंकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ बिजनेस 1973 में बने थे. तो जो 1973 में ना मोबाइल था और ना ही लैपटॉप और ना ही सॉफ्टवेयर.
सो एसेंशियली हमने लॉ के अंदर जब टेक्नोलॉजी मैप करना स्टार्ट किया, तो लेफ्ट साइड पे अगर आप गवर्नमेंट का देखें, तो फॉर इंस्टेंस आईटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास है, टेलीकॉम भी उनके पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज के पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो एचईसी के पास है, एग्रीकल्चर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीटेक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के पास है. सो व्हाट वी डिड वाज वी सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड नाउ वी आर एंगेजिंग विद द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज कि जो भी उनके नए इनिशिएटिव्स हैं वो इन टेक जोन्स के अंदर आए, इंडस्ट्री भी इसके अंदर आए, एकेडेमिया भी इसके अंदर आए, ताकि वो जो सिलोस में पाकिस्तान के अंदर बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सिलोस में हो रहा होता है, अक्सर नॉलेज एक्सचेंज होती नहीं है. सो नॉलेज इकोनॉमी में these clusters or tech zones is more of a convergence strategy. एंड नॉलेज इकोनॉमी में दुनिया भर का लिटरेचर अगर आप उठा के देख रहे हैं, ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक, यूएन के, वो यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी में मैजिक हैपेंस व्हेन टू पीपल सिट, एक्सचेंज आइडियाज एंड कोलैबोरेट, बिकॉज देयर इज नो ब्रिक एंड मॉर्टर. हाईटेक प्रोडक्शन में भी आ जाती है, लेकिन हाईटेक प्रोडक्शन में आईपी एंड आइडियाज आर वे हैव phenomenal weight as compared to what used to be in third industrial revolution, which was more brick and mortar. उसके बाद जी हम दो किस्म के लाइसेंस ऑफर करते हैं. इस सेशन के लिए लेफ्ट साइड का जोन इंटरप्राइज लाइसेंस हम कवर कर रहे हैं. इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम जोन डेवलपर लाइसेंस का कवर करेंगे, बट लेट्स कीप टू जोन इंटरप्राइज लाइसेंस. सो जोन इंटरप्राइज लाइसेंस आर फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज who want to come into our zones, because once you move into our zones, you are eligible for applying for a zone enterprise license. और वो जोन एंटरप्राइज लाइसेंस जो है वो हम टेक कंपनी, स्टार्टअप्स, एसएमईज, यूनिवर्सिटीज, वेंचर कैपिटल, आर&डी यूनिट, एडवांस प्रोडक्शन यूनिट, बीपीओ, हमारे पास तकरीबन 48 टेक्नोलॉजीज हैं जो हम कवर करते हैं. एंड यू कैन इजीली सॉर्ट ऑफ, इफ यू आर इन टेक्नोलॉजी, आई एम श्योर आप हमारे एम्बिट में आते हैं. अगर नहीं भी आते या कोई पॉलिसी कंफ्यूजन है, देन वी हैव अ पॉलिसी डिपार्टमेंट, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस. एंड देयर आर सम एप्लीकेंट्स जिनकी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि डायरेक्टली लेगेसी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रही हैं, तो वो उस पर अब हम पॉलिसीज बना रहे हैं. सो ऑल्दो वी आर अ 2 years ओल्ड अथॉरिटी, हमने बड़ी सारी पॉलिसीज बना भी दी हैं. कुछ बड़ी ट्रिकी पॉलिसीज होती हैं जो कि हमने बनानी है, बिकॉज उसकी वजह से, हमारी पॉलिसी की वजह से मार्केट डिस्टॉर्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. सो वी टेक अ वेरी कॉशियस अप्रोच that we don't distort markets. For this license, set the strategic objectives are essential. आपके एप्लीकेशन का पार्ट, और अब ये मैं आगे कवर भी कर लूंगा, उसके अंदर हम एसटीजे और लाइसेंसेस के 6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और लोकल. हम लोकल इन्वेस्टमेंट को उतना ही वैल्यू करते हैं जितना एफडीआई को करते हैं. नंबर 2 इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नंबर 3 इज टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. नंबर 4 इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. The 5th one is human capital development, and the 6th is job creation. And to a very large extent, I'll show you आगे भी, ये 6 strategic objectives आपने अगले 5 साल के भरने होते हैं. But normally जब आप वैसे देखते हैं तो, and I'll answer this in Q&A session, ये इतना मुश्किल नहीं है भरना. We have kept very simple, and we'll show you the methodology that we use. Just for information purposes, the right side zone developer license are for infrastructure players. कोई भी infrastructure player जो आना चाहते हैं और जोन बनाना चाहता है, या ऑलरेडी उसके पास कोई बिल्डिंग है जो 2.5 लाख स्क्वायर फुट से ऊपर है, या 5 एकड़ की जमीन है जिसके अंदर कुछ बना हुआ है, तो उसके बेस्ड ऑन हमारा बड़ा एक जोन डेवलपर का प्रोसेस है जो कि उन्होंने कंप्लाई करना होता है. उसके बाद हम वो नोटिफाई करते हैं. मैं यहाँ पे आई विल आल्सो टेक अ चांस टू एक्सप्लेन के जोन डेवलपर लाइसेंस इज zone enterprise license is 10 times easier and 50 times shorter in length than the zone developer license. क्योंकि zone is a very complex, वो उसमें हम पूरी feasibility, उसके इकोसिस्टम का प्लान, उसके मार्केटिंग का प्लान, वो सारा कुछ मांगते हैं. और feasibility is a very detailed document. फिर उसके layout प्लान, मास्टर प्लान, ये सारा हम वो देखते हैं. फिर environment का impact assessment देखते हैं, traffic impact assessment देखते हैं. तो zone developer license since is a quasi public good, उसको हम रेगुलेट जरा ज्यादा करते हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी बड़े गौर व फिक्र से करते हैं. जहां तक, और जोन एंटरप्राइज लाइसेंस विच आर टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनको हम बड़े आराम से और बड़ी तेजी से देते हैं, अनलेस वो कोई लेट्स से ऐसी इंडस्ट्री है जो डिसरप्ट कर रही है, जिसमें बाकी रेगुलेटर्स भी इन्वॉल्व है. वहां पे फिर हम बाकी रेगुलेटर्स के साथ मिलके टेक जोन की पॉलिसी बनाते हैं. बट जहां तक सर्विसेज, आईटी इनेबल सर्विसेज, या आपके हाईटेक प्रोडक्शन की चीजें, वो बड़े आराम से हो जाती हैं.
सिमिलरली मैंने टच किया, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये परमिसिबल टेक्नोलॉजीज हैं विच आर अलाउड विद इन आर एसटीजी। हमने 4 के अंदर इसको किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटिंग, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस, हाई टेक एंड एडवांस प्रोडक्शन, emerging technologies. However, we do have the, and बिल्कुल bottom में हमने technology skill development. So we also provide zone enterprise licenses to universities, skill development agencies, venture capital को भी. So either it's finance, either it's HR development, or either it's business, technology business. We cover the whole ecosystem within our license. और जो भी industry से आप हैं, you can always apply and you mention the technologies that you are covering. Number 2, you ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कवर करते हो, आप शायद डेटा सेंटर भी ऑपरेट करते हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी करते हो, और आप आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज भी कर रहे हो, और आप शायद बिग डेटा एनालिटिक्स में भी काम कर रहे हो. सो आप वो मल्टीपल कंबाइन भी कर सकते हैं. सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन, यू कैन ऑलवेज हैव इट्स आइदर और फंक्शन. तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. एंड वी आर फर्दर रिफाइनिंग. नंबर 2, दिस इज लिस्ट टुडे. We are now populating and actually publishing another list next year, which is far more detailed than this one. So rest assured, if you think you're a technology company and you're in the technology sector, or there is a new technology that we haven't covered, you can always contact us at info@stza.gov, or we'll get back to you and we'll add that technology to the list. उसके बाद another very important aspect is our ease of doing business through SEDSA Digital One Window Portal. एक गिला जो प्राइवेट सेक्टर से आता है, बिकॉज नॉर्मली आई थिंक प्राइवेट सेक्टर डरता भी है गवर्नमेंट से एंगेज करने में. However, when it comes to STZA, we have an automated single entry centralized hub for paperless end-to-end onboarding process. The Digital One Window Portal, आप हमारे वेबसाइट पे जाए, वहां पे वन विंडो का लिंक होगा, आप डालें एंड यू कैन ओपन योर अकाउंट. आप जबरदस्त उस पे एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही बनाएंगे, वहां पे आप सबमिट करेंगे, वो एप्लीकेशन रिव्यू और वैल्यूएशन सारी ऑनलाइन होगी, अप्रूवल भी ऑनलाइन होगी, इशुएंस भी ऑनलाइन होगी. और आपके बाद जब पोस्ट इशुएंस जो आपकी लाइसेंस की फैसिलिटेशन है, वो भी उसके थ्रू होगी. आपको कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेरी है, वो भी आप वन विंडो के ऊपर डाल सकते हैं. और आपके जो 10 साल के इंसेंटिव्स हैं इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, इंपोर्ट, वो सारी भी ऑनलाइन हमारे वन विंडो के थ्रू ही वो इंटीग्रेशन जो है वो सारा हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल लेवल पे अचीव कर लिया है. इन नेक्स्ट फेज नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू प्रोविंशियल लेवल. बट मेनली जो कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, ये आपका फेडरल सब्जेक्ट है, तो वो सारा हमारा integrated, and your exemption letters and all will be processed online. So you don't need to, and normally the design point is that you don't need to know anybody in STZA. You don't need to visit STZA. You don't need to follow up in STZA. All you need to do is read what STZ application requirements are, fill the application, submit it, and then आपको ऑनलाइन ये सारी जर्नी जो है वो नजर आ रही होगी. द मोमेंट यू पुट इन एप्लीकेशन, तो हम पे अपना टाइमर ऑन हो जाता है. हाँ, डिले वहां पे आता है जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिसी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलिसी जहां पे लेगेसी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रही है, या आपका बिजनेस मॉडल जो है वो बाइफरकेटेड नहीं है एज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस. सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और उसके नीचे आप फॉर इंस्टेंस मैं XYZ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने एक वहां से बॉटल ऑर्डर कर दी. नाउ बॉटल इज नॉट अ टेक्नोलॉजी गुड, योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज. सो जो बॉटल जिस मर्चेंट से मैंने लिया, या आपने खुद मूव कर दिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये बॉटल का रेवेन्यू कवर्ड नहीं है. लेकिन जो आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो एक कमीशन चार्ज करता होगा, तो वो कमीशन is tax exempt. Your platform is tax exempt, but not the product, which is a non-technology good. So इस टाइप की पॉलिसीज डेवलप करने में, फिर बाकी रेगुलेटर्स के साथ वो करने में थोड़ा सा डिले जो है वो आता है. बट जिस तरह ई कॉमर्स की हमने बना ली, टेक प्लेटफॉर्म्स की भी हमने बना ली है, सो प्रोबेबली द नेक्स्ट चंक ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग इन ई कॉमर्स विल नॉट फेस डिले, जो आज से 6 महीने पहले जिन्होंने जमा कराया था. सो ऑफ कोर्स वी आर कॉग्नाइजेंट ऑफ आवर लाइसेंसिंग स्पीड, एंड वो हम पे internally we made sure that we roll out these policies very quickly, and probably in next 7-8 months, although ये throughout होता रहेगा, क्योंकि हमने एक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस भी की
तो उस पॉलिसी को फिर हम मॉनिटर भी करते हैं कि हाउ इज इट अफेक्टिंग द मार्केट. बट दिस इज जस्ट अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ वी लुक एट एप्लीकेशंस. अच्छा, की फीचर्स तो हमने कवर कर लिए. इट्स जस्ट टू शो यू द इंटीग्रेशंस दैट वी हैव डन. और जो है उसके अंदर आप सबने ईमेल हमें वो की हुए. सो रेस्ट एश्योर्ड वी विल आल्सो ईमेल दिस प्रेजेंटेशन टू यू सो दैट यू कैन रिव्यू इन डिटेल एंड आल्सो get back to these requirements and whatever jo bhi ho. And also you can share this in your network, and we would want you to share this in your network because this is to the benefit of the technology sector. So ye integrations, I don't want to go into detail, but payment systems have been integrated. FPR के साथ integrate हो गया, imports के लिए पाकिस्तान single window के साथ हो गया है, SCCP के साथ integration हो गई है, one window के साथ हो गई है, State Bank of Pakistan के साथ हो रही है, and inshallah we'll be able to do it pretty soon. Similarly, why settle the license? So I think that's where the अगर आप टाइटल देखें special loan, special incentives, to a very large extent हमने ये incentives introduce किए हैं by studying what other countries are offering, and I can confidently say that we have best incentives in the region. और उसके अंदर तकरीबन ये जो आप देखें हमारे ऑपरेशनल इंसेंटिव्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे फिस्कल है. फिस्कल के अंदर फ्रॉम द टॉप इफ वी स्टार्ट प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. नॉर्मली ये 30 to 34% होता है. जब आप ईयर एंड करते हैं तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स पे चार्ज होता है. सो दैट 30 to 34% टैक्स हैव बीन वेव्ड ऑफ by the federal government. All the relevant acts have been amended and this is fully operational. And I think that 30 to 30% saving is a huge saving, जिसको internationally भी आपको बहुत ज़्यादा cost में edge होगा. The second is minimum tax, minimum turnover tax under the income tax ordinance. ये 1.5% होता है, revenue पे charge होता है. ये भी considerable होता है, तो ये 1.5% 10 CL के लिए waive off हो गया. Similarly, import of capital goods, including withholding tax, sales tax and custom duties, ये waive off हो गए 10 साल के लिए. This is not one time. So I'll just give you an example. You're a technology company and you're importing 50 servers and 100 laptops. तो लैपटॉप्स पे आप जरूर 50% 60% ड्यूटी देते रहे होंगे. तो ₹1,00,000 का लैपटॉप है, 1,80,000 का पड़ रहा होता है, 2 लाख का पड़ रहा होता है. तो वो कैपिटल गुड्स अब आप कस्टम्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं. जो इंटरनेशनल ₹1,00,000 का पड़ रहा है वो आप अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं ₹1,00,000 में. देयर आर गोइंग टू बी नो सेल्स टैक्स, withholding tax and customs duty. Similarly, कोई भी, so any capital good, any infrastructure that you need for your business is now customs free. And I'll tell you this कि ये बड़ी this might seem like 3-4 clauses, but considerable hard work, if not thousands of meetings, hundreds of meetings have taken place to operationalize this. एंड इंशाल्लाह ताला ये जब लाइसेंस आपको मिलता है तो हमारी डेडिकेटेड टीम्स है. हमारा पूरा जोन इंटरप्राइज इनेबलिंग डिपार्टमेंट है जो कि फिर आपको फैसिलिटेट करेगा. कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे वो या वन विंडो आंसर करेगा, जोन इंटरप्राइज इनेबलमेंट. एंड देन आखिरी वाला इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन ZE. सो अगर आप एक लाइसेंसी हैं तो एक तो VC के लिए बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि 10 साल पे आपके कैपिटल गुड्स और इनकम टैक्स भी नहीं लग रहा, टर्नओवर टैक्स भी नहीं लग रहा, साथ में कस्टम्स फ्री कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं. तो एक तो बिजनेस के इस VC के लिए वो बहुत बेहतर होता है. दूसरा, अगर तो एक VC आता है और उसने आपको एक्वायर कर लिया और कल को वो उसे एग्जिट करता है 5वें साल में, तो नॉर्मली उन पे 15% कैपिटल गेन टैक्स लगता है. तो VC के लिए हमने वो भी वेव ऑफ करवा दिया टू सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट VCs इन टैक्स जोन्स एक्विजिशन. इसी तरीके से फिर राइट साइड पे एक है फॉरेक्स इंसेंटिव. पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा इश्यू है. अभी भी मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, IT कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, 50% ऑफ दैट मनी हैज टू बी कन्वर्टेड टू PKR. अंडर STZA लाइसेंस यू कैन ओपन अ स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसमें यू कैन कीप नाउ ऑल योर डॉलर्स, ऑल योर मनी इन डॉलर्स. और नंबर 2, कोई भी आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, FDI आए हैं, वो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द स्टेट बैंक यू कैन रिपैट्रिएट इट. सो वी हैव इनेबल्ड दैट एक्सपोर्ट प्रोसीड और FDI के कैपिटल फ्लो जो है वो अब फ्री है. अच्छा, इन केस यू वांट के आपके पास PKR है और आपने उसको डॉलर में कन्वर्ट करके
और आपने वो रिपैट्रिएट करवाना है टू मेक पेमेंट्स, वहां पे वी हैव कंट्रोल इन प्लेस जहां पे वी विल, because you are our licensee, so we have to determine whether it's a legitimate payment or not. To a very large extent we have kept it controlled at this point in time because हम चाहते हैं कि ये अब्यूज ना हो उस तरह से. सो बट वी आर क्लोजली लुकिंग एट इट, और ये बड़ा अच्छा ऑपरेशनल है. उसमें एसटीजीए थोड़ा सा ये लेजिटिमेसी जो है वो देखना चाह रहे हैं. एंड दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, जो कैपिटल का फ्लो है इन एंड आउट. तो इसके अंदर जो पीकेआर से कन्वर्जन है, जो डॉलर आप ला रहे हैं या एफडीआई ला रहे हैं, वो तो आप एज इट इज बाहर लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं. लेकिन जो पीकेआर से कन्वर्ट करना है और फॉरेन करेंसी अकाउंट में फेच करके वो बेचना है, उसमें हमने सिर्फ लेजिटिमेसी ऑफ पेमेंट्स जो है वो हम अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो चीज होगी. अच्छा, कुछ हमारे इंसेंटिव्स नीचे अगर आप देखें टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, वो हम अभी कर रहे हैं. एंड इंशाल्लाह ताला विल इम्प्रूव दिस पैकेज एज वी मूव फॉरवर्ड. और इंशाल्लाह ताला इसमें वी विल बी कमिंग विद गुड न्यूज ईच फाइनेंशियल ईयर. बट हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से ऑलरेडी द टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज गॉटन अ ह्यूज पैकेज. सो एक चीज जो हम पे अब जिम्मेदारी बनती है वो ये कि वी आर एबल टू, द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अवेल्स दैट पैकेज and shows us positive numbers so that we can go back to the parliament and the federal government, which we are part of as well as the federal government. So we have to report to the prime minister annually ki ji, what does technology, what did technology companies achieve and what has our licenses achieved. उसके बाद let's get down to real business for which this session is required, but I wanted कि एक larger हम आपको background दे पाए. So ये हमारी गाइडलाइंस भी है, हम ईमेल के अंदर वो आपको भेज भी देंगे. जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है उसको हम ये डिटेल्ड सारे गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे. एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट अवेलेबल है, उसमें आप डिटेल्स डालेंगे. एक चेकलिस्ट है, उसको आप टिक करेंगे, उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. सिमिलरली उस चेकलिस्ट का ही ये पार्ट है कंपनी प्रोफाइल, जिसके अंदर आपके एससीपी के साथ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर, आपके पार्टनर और एनटीएन सर्टिफिकेट. सिमिलरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स. हाँ, अगर आप स्टार्टअप है या आप एक मिड साइज कंपनी है, इवन लार्ज साइज कंपनी है जो कि 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो जितना भी आपका, या साल पुरानी है, तो जितने भी आपका टाइम हुआ है, जरूरी नहीं है कि 3 साल की दे दें, आप 1 साल का दे दें, आप 6 महीने का दे दें. तो जो भी आपके अगर इससे नीचे की एज है तो आप वो दे दें. और अगर आपकी इसके ऊपर की एज है, 3 साल से पुरानी कंपनी है, तो फिर हमें 3 साल के ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं. सिमिलरली फाइनेंशियल प्रपोजल, एक फाइनेंशियल प्रपोजल हम मांगते हैं. सो लेट्स से आप कहते हैं कि आई एम एन आईटी सर्विसेज कंपनी जो कि अभी फॉर इंस्टेंस $1 लाख का बिजनेस कर रही है, जिसमें $50,000 हम एक्सपोर्ट करते हैं. अब आप हमें कहते हैं कि जी 5 साल में मैं पहुंचूंगा $3 लाख, लेट्स से. तो what is the sort of investment that you are making? What is the sort of funding sources that have? What are these proof of funds? अब उसके अंदर प्रपोज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हो सकते हैं. आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं वीसी या प्राइवेट इक्विटी से लाऊंगा. सो दैट रियली डिपेंड, इट्स लाइक अ बिजनेस प्लान, अ 5 ईयर बिजनेस प्लान. बट हमने बेसिकली ये समझना होता है कि आप जो लाइसेंस ले रहे हैं और आपकी जो एक्सपेंशन प्लान है, क्या आप खुद क्लियर है व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज नॉर्मली आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल and normally in our conversations I figure out they are not clear themselves, okay, what they want to do. So it's all right, you can ask these questions yourself, from yourself, and then fill these in. We're not very strict in terms of ke bhai bilkul specific format hai, but it could be logical. It should have that wo ke अगर कंपनी कह रही है मैं खुद री इन्वेस्ट करूंगी, तो क्या उनके प्रॉफिट्स इतने हैं, या एक लॉस मेकिंग कंपनी है वो कहती है कि मैं अपने प्रॉफिट्स करूंगी, देन इट डजंट मेक सेंस. सो यू हैव टू जस्टिफाई योर फंडिंग सोर्सेज, एंड दैट कैन बी डिविडेंड्स, दैट कैन बी योर डायरेक्टर्स pledging your bank account, showing money in bank account and saying कि we pledge, or it could be investment from a third party. But all we need to understand is कि what is your financial वो. और कुछ कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है, वो कहती है जी मैं अपने बूटस्ट्रैप करके कर लूंगा. A startup product startup may come and say कि मैंने अभी सीरीज ए में जाना है, या मैं सीड फंड में मैं रेज करूंगा, और मैं, so the startup might have a very different strategy, or a product company might have a very different strategy,
than that of a services company. Similarly, a high-tech production company might have a very different investment strategy because high-tech production के अंदर आपका capex upfront involved है, ठीक है, services में नहीं है. So and necessarily दूसरी बात ये कि क्या कोई threshold है कि जी इस तरह होना चाहिए इतनी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कोई थ्रेशोल्ड नहीं है. वी वांट यू टू बी वेरी रियलिस्टिक. हम स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, एसएमई पे उससे थोड़े कम, लार्ज पे उससे थोड़े कम, और एंकर एंटरप्राइजेस जो बहुत बड़ी कंपनी है उस पे थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. सो स्ट्रिक्टनेस लेवल गो डाउन as your company size goes down. And to a very large extent, you need to understand that larger companies, when getting our license, will get incentives in probably billions, and a startup might get it in a few millions, right? So we would be more sensitive to their data and application, which is going to take billions of incentives. Of course, we want to pass on those incentives, but we would like to pass on those incentives based on an application where they are clear themselves. इसी तरह startups का भी है. Similarly, technical proposal में, so financial proposal can be a mix, and we can always advise. हमारा market development department can hold specific calls with you. आप हमें info@stza.gov.pk पे वो करें, and we will share that details in email. How can you get in touch, schedule a meeting, and you will be provided a calendar slot, and you can have a 15-20 minute discussion on your application. Similarly, technical, अच्छा, now moving to technical proposal. यहाँ पे आपने अपना बिजनेस टाइप बताना है, किस टेक्नोलॉजी एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके एम्प्लॉइज का क्या एक्सपीरियंस है, आप या टॉप टीम का क्या वो है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है विद लीगल स्टेटस, वो आप कंपनी प्रोफाइल में. सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर कंपनी प्रोफाइल, बट मोर टुवर्ड्स व्हाट यू विल डू इन एसटीजी. एंड योर टेक्निकल प्रपोजल इज डायरेक्टली, देखिए आपने वो टेक्निकल प्रपोजल पेश करना है और वो बिजनेस प्लान पेश करने में मैं आगे आ जाऊंगा जो फाइनेंशियल प्रपोजल में कवर हो रहा हूं. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आई विल एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन और यहाँ पे आप $100 ना दिखा पाए. सो एवरीथिंग हैज टू बी लॉजिकल, एंड इट डज नॉट नीड टू बी एम्बिशियस. बी कंजर्वेटिव, बी रियलिस्टिक, एंड एसटीजे एक्चुअली अप्रिशिएट्स रियलिस्टिक एप्लीकेशंस because it is easier for you to achieve, and we'll actually want to see real roadblocks. अगर आप टारगेट $1 ट्रिलियन रखेंगे तो उसमें तो रोड ब्लॉक्स होंगे, तो वो ऐसी चीजें होंगी. लेकिन अगर आप टारगेट 5 साल में आप अभी $1,00,000 पे और आप $1 मिलियन पे टारगेट रख रहे हैं और आप एक सर्टेन ग्रोथ दिखा रहे हैं बिजनेस प्लान में, तो वो जब आप अचीव नहीं करते, वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू असिस्ट एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज और रीप्रोग्राम द इकोसिस्टम अकॉर्डिंगली. सिमिलरली जी, आपने अलॉन्ग द टेक्निकल प्रपोजल उसके अंदर एक बिजनेस प्लान सबमिट करना होता है और एक इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस करना होता है. बिजनेस प्लान में व्हाट इज, अब अगर आप देखें ना, ये टू वेरी लार्ज एक्सटेंट योर बिजनेस प्लान, इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस प्लान, योर टेक्निकल प्रपोजल एंड योर कंपनी प्रोफाइल, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड. बिजनेस प्लान में आपने वही मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड, proposed business structure, market demand assessment, sales and marketing plan, economic impact and strategic objectives. तो ये हमने आगे economic and impact and strategic objectives हमने आपने explain कर लिए, क्योंकि आगे वाले पहले 4-5 जो business plan के, I'm sure वो तो हर किसी को आपको clear होगा. फिर critical risk and mitigation and indicative list of capital goods for import. ये आखिरी वाला point और economic impact ये मैं touch कर लेता हूँ. Business plan में ये economic impact analysis एक separate document पर बनेगा, which is your investment, FDI and local, exports, import substitution, job creation, human capital development, technology transfer, R&D budget, and existing intellectual property portfolio. अब जरूरी नहीं है कि आप ये सारी हिट कर रहे हैं. You might hit only exports, you might hit only exports or job creation, you might only hit human capital development and investment. इन्वेस्टमेंट तो हर जगह ही आ जाती है. सो इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट, एक तो ये करनी है हार्डकोर एफडीआई आ गई या एक्विजिशन होगी, एक तो वो है. एक ये कि एनी जॉब दैट यू क्रिएट, द सैलरी दैट यू पे ईयरली, वो इन्वेस्टमेंट है. सिमिलरली जो एक्सपोर्ट आप या जो प्रॉफिट एंड गेन्स आप नहीं उठाने के लिए तैयार और आप कह रहे हैं मैं डिविडेंड्स में नहीं लूंगा या डायरेक्टर्स डिविडेंड में नहीं लेंगे और वो हम री इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज योर लोकल इन्वेस्टमेंट फॉर ईयर 2. So you have to, so these are
So what I advise to technology companies is keep it simple. Human capital development might, आप जाएंगे ऑनलाइन और उस पर सर्च करेंगे, दैट माइट बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स term, right, and very complex methodologies. But if you are an IT services company or a startup company, for instance, और IT services company, और आप कह रहे हैं जी मैं सेल्स फोर्स में या फला Amazon वेब सर्विसेज में या गूगल में 15 सर्टिफिकेशंस कराऊंगा of human resource, that is your human capital development. So keep it simple, keep it aligned with your business. What business, उसमें कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, और ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ये हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और R&D बजट पे, बिकॉज वी वुड वांट आर, जो हम इतने एग्जाम्पशन पास ऑन करा रहे हैं, वी वुड वांट सम ऑफ इट री इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड R&D बजट्स. सिमिलरली, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस है, इसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 टेबल होंगे, वो आपने भरने होंगे एज पर योर बिजनेस प्लान. एंड सिमिलरली आखिरी वाला इज इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर इंपोर्ट. उसके अंदर अगले 5-10 साल में, for instance, you would require to import, for instance, laptops, you would like to import servers, you would like to import communication devices, specialized communication devices, things that are not manufactured in Pakistan. वो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी भी एक लिस्ट जो है वो आप जरूर एप्लीकेशन में अटैच कीजिएगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कस्टम ड्यूटी implication of these businesses, कि वो कितने exemptions होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे. It is not to stop your application, it is to give us more visibility in terms of various businesses requirements. और उसका फिर हम उस लिहाज से मल्टीपल रेगुलेटर्स से हम जो बात करते हैं या जो हमने आगे की पॉलिसीज लानी है, तो उसके लिए ये डेटा हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल होता है. और जब आपको एक लाइसेंस अवार्ड होता है, तो वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट दिस इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ कैपिटल गुड जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से होते हैं. सो इट्स इजियर फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ गेट इट cleared from customs and ports in the future when you are our licensee. अच्छा, इसके बाद सबमिशन के लिए ये भी हमारे पास सारे फॉर्मेट्स होते हैं. ऑथराइजेशन लेटर आपने देना होता है, जो भी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर रहा है. एक हमें फोकल पर्सन चाहिए होते हैं ऑथराइज बाय योर रेलेवेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट होल्ड्स ट्रू एंड वी टेक हिम एज द लीगल पर्सन टू कोलैबोरेट. ये कुछ कंपनीज अपने सीईओज कर देते हैं, कुछ कंपनीज जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट कर देते हैं, तो वो आपने डालना होता है. सिमिलरली यू विल हैव एन अंडरटेकिंग इज वेरी सिंपल. उसके अंदर यही होता है कि इंफॉर्मेशन इज ऑल ट्रू एंड विल कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द अथॉरिटी. एप्लीकेशन फी है वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा. वो हमारी प्रोसेसिंग फी है जो कि वी sort of get to fund our operations of licensing. And then there are other एक स्पेशल एंटिटी होती है, वो है, उसको हम कहते हैं जोन एंटरप्राइज पब्लिक बिल्ड फैसिलिटी. सो कुछ लार्ज कंपनीज होती हैं जिनको पर्पस बिल्ड फैसिलिटीज चाहिए होती हैं. सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से अ लार्ज कंपनी हु वांट्स टू, जो हमारे एक बड़े जोन में आता है, लेट्स से 50 एकड़ या 100 एकड़ का जोन है, और कहते हैं यार मैंने 3000 लोग यहाँ बिठाने हैं एंड आई वांट अ कस्टमाइज्ड facility, so मुझे land चाहिए and I'll build my own building. So majority of our zone enterprise is going to zone developers के infrastructure and land, sorry, वो office lease वो करते हैं, और वो office lease हमें submit करते हैं और वो हम notify कर देते हैं. But in case a zone enterprise wants to build its own office and infrastructure, we also allow that. It's called zone enterprise public purpose built facility. और उसके अंदर हमारे फिर एडिशनल कुछ चीजें होती है, उसका मास्टर प्लान, मैप, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एंड जो भी रिक्वायर्ड ड्राइंग्स फॉर पर्पस बिल्ड फैसिलिटी. सो जिन्होंने भी अपनी बिल्डिंगें बनानी है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके फिर एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो ये है. बट ऑफ कोर्स मार्केट डेवलपमेंट विल असिस्ट यू in terms of, it is a bit more complex than the normal zone enterprise with the rental spaces.
हमारी जी प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन, ऑल्दो मैंने जो है, माय सिंसियर अपॉलजीज जी, वो ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन। और इसके अंदर हमारे 6 लेवल हैं। वन इज द वन विंडो, मैंने एक्सप्लेन किया। वन विंडो में आप अपना अकाउंट बनाएं एंड यू कैन स्टार्ट एप्लीकेशन, फाइलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम टुडे। फिर जब आप फाइल करते हैं वन विंडो पे, वो प्रोसेस करती है, वो चेकलिस्ट देखती है, उसके बाद वो एसटीजी कमेटी चला जाता है। एसटीजी कमेटी इज आर वेरी डाइवर्स कमेटी, जहां पे फाइनेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपकी टेक्नोलॉजी के, रिसर्च के लोग बैठते हैं, वो अपनी वोटिंग करते हैं आपके एप्लीकेशन पे। सो इट्स एसटीजी, आर होल प्रोसेस इज वेरी decentralized and is run through committees, so that we have a very diverse sort of feedback from various experts. उसके बाद वो evaluation जब रिपोर्ट बनती है, वो हमारे अप्रूवल्स कमेटी में जाती है। अप्रूवल्स कमेटी इज आर decision committee which either approves, return the application to STZ committee, defer or reject. डेफरिंग जो है वो नॉर्मली होती है जहां पे हमारी पॉलिसी अग्रीमेंट विद अदर रेगुलेटर्स नहीं हुई होती, और वो हमारे अपने फोरम्स हैं एस्केलेशन के, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आ जाता है। उसके अंदर हमारे अपने जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि हम करते हैं, और जो है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स पॉलिसी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आते हैं, और वो हम वहां पे फिर पॉलिसीज बनाते हैं, और अप्रूवल्स कमेटी अप्रूव दोस पॉलिसीज एंड देन वी प्रोसेस दीज। And then once the approval committee approves, it can also return if approval committee feels कि evaluation के अंदर certain gaps हैं, तो वो STZ committee को return भी कर सकती है, and STZ committee will then get in touch through one window with you. Your POC or your point of contact will be one window. हमारी committees back end पे चलती हैं, तो आपने either one window के through करना है या market development. You don't engage with committees, and the committees are not authorized to engage externally because these are licensing wo, and we expect the private sector and the industry to comply with STZ regulatory sort of regime. And your market development department and one window is your authorized department to interact with externally. Similarly, once your application is approved, the authority issues the license, which will be communicated through email and one window, and your operationalization of license happens in stage 5 once the license is awarded, and from the date of the license is issued, your incentives are enabled. इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फरवरी 2025 में लाइसेंस मिला तो उसका मतलब ये है कि जुलाई 2024 से आपके इंसेंटिव्स एक्टिवेट हो गए। नो, द डेट व्हेन द लाइसेंस इज इशूड, उस टाइम से आपका जो है वो इंसेंटिव ऑपरेशनलाइज होंगे। एंड सिमिलरली, वंस द license is issued, every year you have to submit your annual report and audited financial statements, which will monitor, और वो cumulatively फिर हम उसकी एक रिपोर्ट देते हैं जो हमने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करनी होती है, और फिर उसमें जो भी आपके मसले मसाइल हैं या ग्रोथ आप नहीं अचीव कर पाए, वो रीजंस भी हम जो है वो अपने साथ बना के, एंड देन वी रन एन एनालिसिस एंड सी के अगर एक सिग्निफिकेंट मसला मल्टीपल licenses या scores of licenses की तरफ से आ रहा है, then we can introduce a policy to the benefit of the technology industry. Similarly, one other important aspect is जो normally सवाल पूछा जाता है वो ये है कि continuity of our incentives. Rest assured, all these incentives have been, जो भी license के अंदर award होते हैं, has been made part of the law, और ये Act of Parliament में included है, and this is not Hamza Saeed or STZA or any agency in the federal government saying, it is an Act of Parliament जहाँ पे फिक्स हुआ है to ensure that continuity. और कोई भी कल को incentive अगर change होता है तो the Act is very clear कि it would be to the benefit of the technology industry and to the benefit of our licensee. सो लेट से 2026 में हमने इंसेंटिव्स कम किए, तो अगर हमने इंसेंटिव्स कम किए तो वो आपके लाइसेंसेस पे इफेक्ट नहीं होगा, वो इंसेंटिव्स उस डेट से जो बाद लाइसेंस इश्यू होंगे उसमें कम होंगे। सो देयर इज अ प्रोटेक्शन विद इन द लॉ कि जो भी लाइसेंस जो है वो इश्यू होता है उसमें जो इंसेंटिव्स है दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड इफ दे आर चेंज्ड इट विल बी टू द बेनिफिट। सो ये 10 साल से 15 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते।
और जब ये 9 हुए तो जो लाइसेंस इशू हुए हैं उसमें 9 नहीं होने, जो उसके बाद इशू होंगे उसमें 9 होंगे. So we have put that protection in place to sort of build that confidence in the private sector that you can draft business plan according to these incentives. तो मैंने कहा ये एक मैं कवर कर दूं. सिमिलरली हमारी जी एप्लीकेशन फी है फॉर जोन एंटरप्राइजेस, और उसके अंदर ये 5 सेगमेंट्स हैं. द फर्स्ट सेगमेंट इज स्टार्टअप. स्टार्टअप की एप्लीकेशन फी है 20,000. उसके अंदर हमने ये ग्लोबली बेंचमार्क किए और लोकली भी बेंचमार्क किए, और उसके अंदर हमने ये बेंचमार्किंग करके हम कैटेगराइज करते हैं. सो अब एप्लीकेशन के टाइम पे प्लीज कैटेगराइज योरसेल्फ and then submit the relevant fee. Otherwise issue ही होगा, you'll waste significant time because once we look at data तो आप एक खास कैटेगरी के अंदर डालते हैं. SMEs का 21 से 250 के दरमियान एम्प्लॉइज हो या 500 million to 1 billion हो, whichever is higher. Whichever is higher का मतलब ये है कि even if you are 18 employees and you have 600 million revenue, then we'll consider you as SME. So your higher जो भी मतलब विद इन दिस जो आपकी कैटेगराइजेशन हुई है उसमें जो हायर फिगर होगा वो रिकॉग्नाइज होगा रादर देन योर लोअर फिगर. सिमिलरली लार्ज एंटरप्राइज 251 to 1,000 एम्प्लॉइज और 1 बिलियन to 15 बिलियन रेवेन्यू, उसके 5 लाख फी होती है. एंड देन एंकर एंटरप्राइजेस, उसमें आप अगर देखें तो 1000 से ऊपर रिसोर्सेज या 15 बिलियन से ऊपर आपकी रेवेन्यू हो एनुअल, तो वो फिर हम 1 मिलियन फी चार्ज करते हैं. इसी तरह पर्पस बिल्ड फैसिलिटी पे हमारा स्ट्रेट 1 मिलियन है. एंड सिमिलरली जो जोन डेवलपर का होता है वो 20 लाख हमारी जो है वो एप्लीकेशन फी है. बट रेस्ट एश्योर्ड आप ये देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, अगर आप परसेंटेजेस में देखें तो मतलब लेट्स से एसएमई माइट भी 50 करोड़ से 1 अरब रुपए, तो 2 लाख रुपए उसके अगर आप परसेंटेजेस में देखें तो परसेंट में भी वो 0.% पे आते हैं. सो वी हैव इंश्योर्ड कि ये कैस्केड करें ये स्टार्टअप्स, एसएमईज और लार्ज एंटरप्राइजेस और एंकर एंटरप्राइजेस में. और टू अ लार्ज एक्सटेंट ये एप्लीकेशन भी इस वजह से भी बढ़ती है बिकॉज एज वी गो डाउन the application of large enterprises are way more complex and require significant amount of brain power, time to decide on a license of a large enterprise as compared to startups. So हमने वो load के लिहाज से भी इसको देखा हुआ है. So one is the incentive and the other is the load or the workload that is required to issue a license. So there is a huge distinction between a license of a startup or SME and a license of a large enterprise or anchor tenant. So just with the ending section of वो हमारे zones जो हैं वो अभी 5 शहरों में आए हैं, and rest assured that these cities will multiply in next 12 to 18 months. We have huge demand from the private sector, from the public sector across various cities. And you must also understand that technology zones are multi-billion rupees decision for any company, for any developer. So it takes good 6 months to 7 months their boards decide, they interact with us, but there is a phenomenal amount of momentum in terms of these tech zones that are coming online, and rest assured that these numbers will multiply really quickly. However, the leading cities now housing this are 5, and we're expecting कि जो city wise हमारा rollout है वो भी diversification जो है वो अगले 12 से 18 महीने में आप देखेंगे कि these pins will multiply by 2x or 3x inshallah, and that is one of the core mission of my department, the market development, कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में लेके जाए. However, छोटे शहरों are still struggling with you also need to understand कि this is a 2.5 years old authority. So one is the awareness section, जो कि awareness में तो हम double down कर रहे हैं. Number 2 is the market capacity. और उसके अंदर तो वेरी लार्ज एक्सटेंट हम जब टेक जोन्स के अंदर वो करें तो टेक जोन्स के अंदर हमारी ये कोशिश है कि जो पैसा शॉपिंग मॉल पे या हाउसिंग सोसाइटीज में पार्क हो रहा था और जो अनप्रोडक्टिव था उनको हम कन्विंस कर पाए टू इन्वेस्ट इन टेक जोन्स. बट दिस परसुएजन एंड कन्विंसिंग
requires actually billions of rupees of investment. However, Alhamdulillah, with our historical data now, जो कि 22 साल के अंदर, our performance of tech zones, there has been huge confidence within the market across all provinces to roll out these tech zones, and we see significant movements in the private sector, but बड़ी खामोशी से होती है क्योंकि आपको पता है private sector moves silently. Similarly, several public sector players are now coming as well. All the public sector have been leaders so far, और वो इस वजह से क्योंकि private sector wanted proof of concept, वो proof of concept जो है वो अब आ गया है. जो भी tech zone हम notify कर रहे हैं वो 90-100 दिन में full हो जाता है. So the private sector has gotten that signal, and so did the public sector, that this is the next growth of area and the next engine of growth within the infrastructure. So jo hai, as we license the technology companies, inshallah ta'ala will be on a war footing, bringing multiple technology zones online. With this, this is a high level map of tech, 16 tech zones, जिसके अंदर 11 operational हैं. Just let me show you जहां पे हम बैठे हैं. सो सेटजा ये इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर है हमारा. दिस इज अ 300,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग. ये जो इस्लामाबाद से हैं या जो इस्लामाबाद आए हैं जरूर ये बिल्डिंग आपने देखी होगी. सो दिस इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक एसेट व्हिच वाज अनयूटिलाइज्ड. ये 15 साल के अंदर बिल्डिंग बनी एंड देन फॉर 2-3 years it was empty. Then we approached State Life, repurposed the infrastructure. They invested a certain amount of money to make it tech zone ready, and then we notified it, and now it consists of around 1,500 technology resources. Actually थोड़ा सा पुराना फिगर है. Now it's around 3,000. और जो है 13 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं. Around 13.8 million dollars per year expected technology export output hai. So you know this is a smaller one of the first tech zone that we notified, and the public sector asset was repurposed to become a tech zone. और अगर आप, this is a 24/7 building, और जब आप आएंगे रात को 2 बजे जिना एवेन्यू पे तो आपको देखेगा कि this is one of the few buildings in Islamabad जो कि lit up होती है, because it services US markets, it services European markets. So most of our tech zones are multi-time zoned entities जो कि cater करती है हमारे export oriented businesses को. Although I'll share this business and you can see different aspects. See अभी हम similarly one of our latest zone, फिर हमारे कुछ special zones भी आते हैं जो मतलब special sector के लिए आते हैं. ये पिछले हफ्ते हमने किया है. This is a Mindbridge zone, which is a BPO, specialized business process outsourcing zone, और ये तकरीबन 3-3.5 लाख स्क्वायर फुट है, जिसके अंदर 169,000 स्क्वायर फीट जो है वो है, जिसके अंदर 145,000 पे हमारे 5,000 BPO resources हैं, and then they are now making available another 40,000 square feet for BPO companies that they want to partner with and house in their technology zones, जिसके अंदर वो अपने services भी offer करना चाहते हैं to scale their operations and also acquire innovative BPO startups. तो to a very large extent कुछ हमारे specialized zones भी, जिस तरह ये BPO zone है, so यहाँ पे cluster आपको BPO का मिलेगा. इसी तरह फैसलाबाद के अंदर I'll just show you कि फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर 38 एकड़ हमने नोटिफाई किए. दे आर नाउ एक्वायरिंग अ जोन डेवलपर लाइसेंस. दे हैव सेट अप एन इंक्यूबेशन सेंटर. मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हैज एक्चुअली इग्नाइट जो है उन्होंने एनआईसी पूरा सेटअप कर दिया है, जहां पे अब एग्रीटेक के कोहॉर्ट्स आ रहे हैं. सिमिलरली सम प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर कमिंग इनटू R&D, बायोटेक, वैक्सीन प्रोडक्शन, कोल्ड चेन का जो कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा है ही नहीं, तो ये ज्यादा एग्रीटेक के ऊपर फोकस्ड है. सिमिलरली हमारा जो एक और मैं जोन देता हूँ बिफोर वो, बट विल शेयर दिस ओवर ईमेल एंड यू कैन ऑलवेज लुक एट इट. वन ऑफ आवर इमर्जिंग क्लस्टर इन केपी इज हरिपुर. देखिए पेशावर से पहले हरिपुर में 4 आ गए
और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है बिकॉज HTJ was not expecting it. और यहाँ पे because Haripur and then we did our homework and we were very surprised. Haripur is such a strategic location because आपके पास सबसे ज्यादा vocationally trained resources का cluster because of Taxila, because of your Hatar Special Economic Zone. Ahmedabad is known as the education city of KP. So ये बिल्कुल उसके और फिर साउथ में मर्दान जो है वो घंटा दूर है. सो ये बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है. एंड दिस इज अगर आप 25-30 mile radius में we have more than 40 universities. We have the highest concentration of vocationally trained resources. So आपके जो high tech production का सारा cluster है वो सारा यहाँ पे आ रहा है. And so far within this our zones हमारे पास 4 किस्म के player आ रहे हैं. एक player है universities, जो universities का part एक specific part जो है वो टेक जोन डिक्लेयर करके इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी के अंदर लाना चाह रही है. द सेकंड इज आर पब्लिक जोन्स. पब्लिक प्लेयर्स सच एज नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ओल्ड एयरपोर्ट्स को री इन्वेस्ट करके टेक पार्क्स बना दिए. ठीक है. सो पब्लिक स्टेट लाइफ है, ये पब्लिक सेक्टर है जिनके पास एसेट्स हैं एंड दे इन्वेस्ट एंड रीपर्पस इट फॉर द टेक्नोलॉजी प्लेयर्स. The third is our purpose-built zones. These are big companies who wants to build purpose-built zone in a specific technology area. जिस तरह मैंने Mindbridge का दिखाया, similarly NRTC है. NRTC is our high-tech production zone. NRTC is our high-tech production zone जो कि बहुत ज्यादा IoT, रेडियो कम्युनिकेशन, AI in production उस पे काम कर रही है. साथ में वो ये कह रही है कि मैं हमारे जोन में जो भी आना चाहता है that can be our joint venture partners. So it's not an open zone. It's a company with its own dedicated zone and building partnerships in horizontal and vertical linkages. मैं horizontal vertical linkages को अभी नहीं cover करूंगा, but to a very large extent the point being is that very diverse players are coming in and we'll see such diversity. And then also private sector के अंदर let's say ये एक हमारा park under construction है. This is the highest park. This is the highest building in Islamabad and Lahore, and STZ is pleased to enable this state-of-the-art infrastructure for technology. By this whole building is completely custom built for technology companies. और ये अगर आप जो फसाड देख रहे हैं ये इंटरनली भी इसी तरीके से बनाई गई है. इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी, इसके अंदर IoT, ये सारा इनेबल्ड है. इनके इवन जो छत के हाइट्स हैं वो ग्लोबली बेंचमार्क है. सो यू कैन सी दैट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कमिंग probably in 3-4 years is going to be aligned with what you see in Dubai or what you see internationally. And that is one of our key mandate as well कि वो उस लेवल के हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाए कि जब आप ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करें तो आपके दफ्तर वो आए तो उनको लगे कि जी आई एम सिटिंग इन मिडिल ईस्ट और आई एम सिटिंग इन एन एरिया व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. सिमिलरली कराची में हमारे 2 हैं. नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम कराची. वी आर सीइंग ह्यूज मूवमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन कराची एज वेल एंड इन लाहौर एज वेल. So this is a very high level sort of overview. और ये इसके अंदर प्लेसमेंट और वो सारा फिर हम आपको एक फॉलो अप ईमेल भी जो है वो कर देंगे जिसके अंदर हम आपको रिक्विजिट ऑफिसर्स की डिटेल्स विद प्रेजेंटेशन विद गाइडलाइंस विद ओवरऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो पूरा पैकेज हम आपको दे देंगे. एंड देन यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट अ टाइम स्लॉट और हम 15-20 मिनट्स में हमारी टीम में समीन अमजद होती हैं हु इज लीडिंग द मैनेजर मार्केट डेवलपमेंट and she will set up a call and one of our officers will sit down with you 15-20 minutes 30 minutes and answer your question. So with this I'll end today's session and I would like to thank my whole internal team as well for making sure कि outreach जो है वो अच्छी रहे and we get good response from the industry. And I'm thankful to all the industry people there to sort of bear with me for 1 hour and listen to all the regulatory sort of things that we require. But I must also say that this is a new beginning of a very major initiative that has all out support from not just the federal government, but also provincial governments, all the strategic
government institutions that exist in the country, and also Special Investment Facilitation Council has placed STZA as one of the 5 economic pillars. So SIFC se leke across all departments, and whether that be federal, provincial, or INSTRAT, there is a lot of excitement and a lot of support, and STZA sees private sector as the new engine of growth. And hum throughout public-private partnerships and bringing government and industry together, that is the cornerstone of our strategy. और जो है इंशाल्लाह ताला collectively मैं चाहूंगा कि आगे सेशन में आप अपने दोस्त, आपको लगता है कि कोई relevant था इस सेक्शन के और उनको भी ज्वाइन करना चाहिए था, so we'll be doing regularly zone developer and zone enterprise sessions, and of course one-on-one session के लिए हम follow up email में आपको बता देंगे, and you can schedule it, and इंशाल्लाह ताला हमारी full कोशिश होगी that we give you a very unique customer experience that you are not known to in terms of when you talk about government service delivery. So that is it from our side. I think we can open question answer session. We have several hands raised. So we'll open the mic one by one, Ji. अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी अंजुम साहब. अब्दुल मोइज, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन, काफ़ी हेल्पफुल रही है. मैं अभी STZ के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से तो आई हैव अ क्वेश्चन कि हमने जो कैपिटल गुड्स विद HS कोड डिक्लेयर किए हैं, वी आर एन IoT कंपनी, सो वी हैव लाइक 202 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट. तो इसमें एक इशू ये आ रहा है कि हमें वेंडर एक HS कोड देता है जो हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया है, एंड रिसेंटली जब हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया तो कस्टम वालों ने दूसरा HS कोड लगाया है. तो इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं आएगी कि कल हम लोग जब टैक्स ब्रेक्स लेना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में अब्दुल ये थोड़ा सा देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं सारे एप्लीकेंट्स को ये कहता हूँ कि जो भी HS कोड्स हैं उसमें तो वेरी लार्ज एक्सटेंट आप थोड़ा बहुत पूछेंगे तो अच्छे कंसल्टेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि शायद आपको बड़े माइन्यूट चार्ज करें अगर आप उसे कहें इसके क्या HS कोड्स हैं. बट फॉलो द कस्टम्स HS कोड्स. एजेंट्स के HS कोड्स आर इररिलेवेंट. दूसरा वो ये कि कल को मिसमैच होता है, वी डेफिनेटली वुड फैसिलिटेट. However, it creates operational issues जिसमें आप भी सफर कर सकते हैं, STZA का कंसिडरेबल टाइम भी लग सकता है. सो हम बिल्कुल ये वो करते हैं कि एप्लीकेशन स्टेज पे आप जितना अच्छा होमवर्क करें, खैर 10-15 दिन बाद एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बट ये वाला पार्ट जो है इस पे अच्छा होमवर्क करके सबमिट करें ताकि आपकी जो ऑपरेशनल लेवल पे वो स्मूथ तरीके से हो जाए. अदरवाइज मिसमैच होगा, हम यहाँ से खत लिखेंगे, वो वहां से खत आएगा, उस पर आपका टाइम लगेगा, डेमरेजेस लग सकती हैं. तो इस वजह से जितना अच्छा इसको लिख सकते हैं, सो दैट वुड बी गुड फॉर ऑल पार्टीज. Okay. So basically, we should follow the custom HS codes for a better operational. Okay. Thank you very much. जी जरूर साहब. अस्सलाम वालेकुम. आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है. ज़हूर शाह बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर पाकिस्तान डिजिटल सिटी का. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जोन डेवलपर्स. मेरे 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली. अगर आप कहते हैं कि इकट्ठी पूछ लूँ या 1 बाय 1 पूछ लूँ? जरूर साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर तो आप जोन डेवलपर हैं, ठीक है, वी कैन, यू आर अ नोटिफाइड जोन डेवलपर, यू कैन, मैं अभी ईमेल या आप नाम नोट कर लें, हम आपसे एक सेपरेट कॉल कर लेंगे रादर देन, क्योंकि जोन एंटरप्राइज रिलेटेड है, मेजॉरिटी यहाँ पे जोन एंटरप्राइजेस है. सो आई वुड वांट, इफ यू अलाउ, आई वुड वांट इट टू बी जोन एंटरप्राइज स्पेसिफिक. ओके, लेकिन ये क्वेश्चन जोन एंटरप्राइजेस रिलेटेड ही है जो कि चलिए फिर बताएं, एक ही गो में बता दें सारे.
ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले ये है कि ये प्लेसमेंट ऑफ ज़ेडीज़ वो किस तरह होगी? ये आप किसी टेक्नोलॉजी ज़ोन में इसको प्लेस करेंगे या ये दे आर ओपन टू मार्केट? अगर टेक्नोलॉजी ज़ोन में इसको प्लेस करते हैं तो फिर ज़ेडीज़ का क्या रोल होगा इसमें? ये टोटली आप अपनी तरफ से करेंगे या ज़ेडीज़ की भी कुछ नॉमिनेशन सिर्फ सीबीआई की? दूसरा ये है कि 10 इयर्स के लिए जो टैक्स इंसेंटिव्स है उसमें क्लियर है, ज़ोन डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी है आपका एसटीजीए का रोल। उसके बाद एसटीजीए का क्या रोल होगा 10 साल के बाद? तीसरा ये है कि पर्पस बिल्ट फैसिलिटी के लिए ज़ेडीज़ के लिए आप लोगों ने सिर्फ 1 मिलियन लिखा है, इसकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ये फैसिलिटी जो ये 5 मरले की भी हो सकती है, 5 कनाल की भी हो सकती है, 10 कनाल की भी हो सकती है, जिसमें से डिफरेंट रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो आप तो 1 मिलियन इकट्ठी चार्ज कर रहे हैं, इसकी भी कुछ कैटेगराइजेशन आई थिंक होनी चाहिए उसकी पर्पस बिल्ट फैसिलिटी की, क्योंकि हमारा जो जोन है वो हाइब्रिड मॉडल है, उसमें पर्पस बिल्ट फैसिलिटी भी है उसकी भी और रेडीमेड फैसिलिटी भी होगी उसमें। तो उसमें हमारे पास छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं, कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं जो कि आप सबसे एक ही वो फी चार्ज करेंगे। अच्छा, मैं वन बाय वन मेरे एक नोटबुक मुझे दे दें ताकि मैं नोट भी करूँ जरूर के तो मुझे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन प्लेसमेंट ऑफ ZDs इन अ स्पेसिफिक जोन। हम जी जोन एग्नोस्टिक है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि हम आप जिस तरह होटल जाते हैं ना जी, और होटल जाते हैं और वो आपको मेन्यू कार्ड देता है और मेन्यू कार्ड में फिर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने क्या खाना है। Similar is our approach. We provide menu card of zones, and then the zone enterprise decides on themselves because this is a business decision. हम business decision नहीं लेते। अब फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है जो कि एक कंपनी जो है वो 3 लोकेशंस पे है, वो 3 जोन में अपने आप को प्लेस करना चाहती है, ठीक है, और उस जोन में अवेलेबल है, बिल्कुल हम अलाउ करते हैं। अगर वो हम ये जरूर बता देते हैं कौन सा फुल है कौन सा नहीं है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस 6 ऑफ आवर जोन्स आर नाउ फुल, सो वो हम बताते हैं कि ये फुल है और यहाँ पे इतने स्क्वायर फुट स्पेस इन जोन में वो है। ऑल्दो वो जोन एंटरप्राइज हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, बट वी डोंट एडवाइस दिस because for us we are a zone agnostic organization. For us all zones are equal for us, and we recommend that zone enterprises or these technology companies go explore and see which one is suitable for them, because उसने अपने employees move करने हैं, उसने जो है अपना business operate करना है वहां से, so they better understand where that zone would be. So we और हम जो इंटरनेशनल भी मार्केटिंग अभी आगे लॉन्च करने लगे हैं उसमें भी हमारी यही अप्रोच है। ऑल जोन्स आर इक्वल, वी प्रोवाइड दैट मेन्यू कार्ड। कल को कोई सिस्टर जोन साइन करना चाह रहा होगा उसमें भी हम उसको ऑप्शंस देंगे। मतलब हम तो सो बिकॉज एज अ रेगुलेटर वी ट्रीट ऑल जोन्स इक्वल, सो देयर इज नो रोल इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। हाँ, वी डेफिनेटली से कि आप इस जोन में आना चाहते हैं, वहां से हम एक LOI दे दें कि आप यहाँ पे प्लेस होने लगे, तो जोन डेवलपर हमें एक LOI या लीज डॉक्यूमेंट, आपने तो दफ्तर ले लिया है तो मुझे लीज डॉक्यूमेंट दे दे ताकि मैं उस एड्रेस पे आपको लाइसेंस इशू कर दूं। द सेकंड वन इज जो जोन एंटरप्राइज। सर इस पे LOI जोन एंटरप्राइज ने ले ली है, ठीक है, उसके बाद वो STGA चला गया, उसने तो इसलिए इस जोन में अप्लाई किया है ताकि उसको जोन एंटरप्राइज का लाइसेंस मिल जाए। अगर उसको LOI के बाद भी STGA के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा और जोन एंटरप्राइज का लाइसेंस इसको नहीं मिल रहा, तो उसका क्या फायदा है कि वो यहाँ पे जोन वो किसी टेक्नोलॉजी जोन में बैठ के बिजनेस करे। तो ये दोनों अलाइन नहीं होने चाहिए, इकट्ठी ये प्रोसेस होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि पहले उधर टेक्नोलॉजी जोन में आप LOI ले ले उसके बाद इधर आ जाए, और या पहले अगर आपके पास आते हैं फिर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो वो भी फिर यहाँ पे आप उसको अलाउ नहीं कर सकेंगे। तो ये म्यूचुअली अगर हो जाए कोऑपरेशन। जरूर, दिस इज अ गुड पॉइंट एंड इट इज वेल नोटेड। इसके अंदर एक मीटिंग हम इंटरनली कर भी चुके हैं। टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट रेगुलेटरी लेवल पे द लॉ अलाउज अस टू इशू लाइसेंस ऑन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक। नॉर्मली कंपनीज अप्रोच अस, पहले वो अपना बिजनेस हमारे साथ डिस्कस करती है, हम कहते हैं जी बिल्कुल ये क्वालिफाई करता है, यू कैन कॉन्फिडेंटली गो एंड गेट एन LOI।
वो LOI लेके वो एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, प्रोसेस में स्टार्ट, साथ में LOI भी डाल दो। तो बड़ी स्ट्रीमलाइनिंग हुई है, बट वी विल फर्दर स्ट्रीमलाइन, दिस इज वेल नोटेड एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये बिल्कुल हम इसके ऊपर जो है एक एडवाइजरी इशू भी कर देंगे। दूसरा आपने पर्पस बिल्ड फैसिलिटी का कहा, देखिए पर्पस बिल्ड फैसिलिटी पे दो किस्म के वो है, एक है बिकॉज दिस इज अ मोर ऑफ अ, आप पर्पस बिल्ड फैसिलिटी ले ले, सेमी जोन डेवलपर ही है वो, ठीक है, एक जोन के अंदर उसने अपनी एक फैसिलिटी बना ली है, तो उसका प्रोसेसिंग तो 1 मिलियन है, उसकी लाइसेंसिंग फिर फी जो एनुअल है वो फिर हमने जोन डेवलपर के साथ स्ट्रीमलाइन की हुई है, जो कि उससे फिर जोन डेवलपर इकट्ठी करके वो हमें देता है। वो टॉपिक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आई वुडंट से यहाँ पे हम डिस्कस करें, बिकॉज मुझे नहीं लगता यहाँ जोन एंटरप्राइज विद पर्पस बिल्ड फैसिलिटी वाला है, लेकिन प्रोसेसिंग उसकी बिलियन पे हमने फिक्स की हुई है, बिकॉज वी वांट कि टेक्नोलॉजी कंपनी, जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो पर्पस बिल्ड फैसिलिटी बनाना चाहती हैं, वो, बट चूंकि हम लाइसेंसिंग जो प्रोसेसिंग फी है वो एज अ वर्कलोड देखते हैं, तो वर्कलोड जोन एंटरप्राइज पर्पस बिल्ड फैसिलिटी का कंसिडरेबल है, इस वजह से हमने उसकी 1 मिलियन रुपीस फी रखी हुई है। जोन डेवलपर से कम है लेकिन जोन एंटरप्राइज से ज्यादा है। with no categorization, right? अच्छा, after 10 year STZA का क्या रोल होगा ZEs में और ZEs में और ZEs में? देखिए जी, अच्छा बाकी सारे क्वेश्चन है, मैं ZE देखें, हमने 10 साल की स्कीम जोन एंटरप्राइज के लिए डाली, जोन डेवलपर हमारे साथ 25 साल डेवलपमेंट अग्रीमेंट में है, जिसमें जोन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए 10 साल उसने वेवर लिया और उसको बड़ा अच्छा सारे वो मिले, और उसके बाद अगले 15 साल वो इकोसिस्टम मैनेज कर रहा है एज पर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एंड आल्सो पे टैक्स बिकॉज द गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू अर्न सम मनी फ्रॉम द टैक्स जोन्स फ्यूचर। However, for zone enterprises, our incentive will become zone enterprise 10 साल पे एंड हो जाता है, फिर ममालिक ग्लोबली ये हो रहा है और हमारी भी ये इंटेंशन है कि मोर सोफिस्टिकेटेड incentives come into play. For instance, R&D के अंदर incentives आ जाएंगे, टैक्स क्रेडिट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएंगे, सो वो, लेकिन हमारा इकोसिस्टम चूंकि लोअर वैल्यू चेन पे है, तो इस वक्त ये सेट ऑफ इंसेंटिव 10 साल के लिए अप्लाई करेंगे। 10 साल के बाद उसकी स्ट्रैटेजी हम शायद जब STZA 7वें 8वें साल में आएगा, उसके बाद we'll start drafting these strategies, looking at the data and what the market needs in future, but those will be way more sophisticated than the current ones. Right, sir. Thank you. ठीक है जी, आगे। जी लिखा जी, कीनू कीनू की है अर्शद अवान। अर्शद साहब आप बोल सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, अरशद अमान बात कर रहा हूँ। मैं होमी प्रॉपर्टीज से बात कर रहा हूँ और हम लोग प्रॉपटेक में भी काम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप जोन डेवलप करने जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी कंपनीज आएंगी, डायरेक्टली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वो स्पेस ले सकती हैं? देखिए अर्शद साहब, ये तो बड़ा हाई लेवल सवाल आपने पूछा है कि इनडायरेक्ट में भी बिजनेस मॉडल पे है। इनडायरेक्ट में फॉर इंस्टेंस वेंचर कैपिटल हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट कंपनीज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकती है, प्राइवेट इक्विटी हो सकती है, सो फाइनेंस HR कैन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंड वी लाइसेंस देम। ऑफ कोर्स HR हैज टू बी इन STEM फील्ड्स। सिमिलरली कोई और टेक्नोलॉजी तरफ, ई कॉमर्स है, बिल्कुल वो सारा हमने कवर किया है। उस स्लाइड में मैंने 48 टेक्नोलॉजीज दिखाई हैं, वो हम आपको ईमेल में शेयर भी कर देंगे, सो यू कैन लिस्ट डाउन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज जो कि है। और अभी सी क्रिटिकल बेस अप्रोक्सीमेट ऑफ 30,000 कंपनीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दीज टेक्नोलॉजीज, तो वो सारी कवर थैंक यू सो थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली आपका शेड्यूल सेशन का चेंज हुआ था तो मैंने लास्ट ज्वाइन किया, इस वजह से पता नहीं चल सका। नॉट एन इशू जी, हम जोन डेवलपर की अलग करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। आई थिंक यू आर वे मोर रेलेवेंट ऑन द जोन डेवलपर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। करें जी आगे। जी फरहान शाह कोलैब्स।
Mute है. So let's move to the other one. Let's move to the other one. उमर वास्ते. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. उमर आ रही है. जी अच्छा, मैं उमर वास से बात कर रहा हूँ कनाडा से, और मैं को फाउंडर हूँ एक टेक कंपनी में यहाँ पे, और हम B2B SaaS प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, और अगर मैंने उन्हें कन्विंस करना है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में हम इन्वेस्ट करें और फ्यूचर ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली माइलस्टोन्स चाहिए होंगे आपके स्पेशली प्रोजेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर में आप बता रहे हैं कि 2 नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन टर्म है, तकरीबन 6 से 7 साल, 8 से 9 साल, बट ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, और लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो डेट्स पे और कंप्लीशन डेट्स पे या एस्टिमेटेड डेट्स के बारे में बात करें। तो अगर हमने डिसाइड, अगर मैंने आपसे पूछना हो कि लाहौर वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं कितने कंप्लीशन में हैं ऑलरेडी, कितने कंप्लीटेड हैं ऑलरेडी, कितने टूवर्ड्स कंप्लीशन है, और अगर हम एस्टिमेटेड टाइम के बारे में बात करें तो वो क्या है उनका। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर जो दूसरी आपने बताया कि दिस इज लाइक अ वन विंडो एक्शन ओरिएंटेड आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने एक ही विंडो में जाना है, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट वन बॉडी दैट यू हैव टू इंटरेक्ट विद, बट लेकिन आपने फिर साथ में ये भी बताया है कि बैक एंड में आपकी कमेटी है और जहाँ पे मैनुअल रेज ऑफ हैंड होते हैं और वोट्स होते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि फिर तो ये वन प्लेटफॉर्म ना हुआ एक तरह से? देखिए के उसके बारे में अंदर उमर साहब 2 चीजें हैं. एक तो मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया कि अराउंड 11 of our zones are fully operational or partly operational, so space is available. So for instance, if you decide to set up a company in Pakistan and get zone enterprise license, we will assist you in placing you. We will give you the details of relevant operational zones where space is available. वहां पे आप सेटअप कर सकते हैं. वहां पे हमारे बल्कि इनफैक्ट co-working spaces भी हैं जहां पे आप एक सीट लेके कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. So we all the big players, whether that be, I'll also take names. Collabs is in Lahore, जो कि हमारे जोन के अंदर है. आप वहां पे सीट लेके और कंपनी SCCP में बना के और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस प्लान और वो फुलफिल करके आप उसको उधर कनाडा से ही भर के और सबमिट कर लें. हमें इन्फॉर्म कर दे कि आई हैव सबमिटेड. अच्छा, वन विंडो देखिए, टू वेरी लार्ज एक्सटेंट फॉर यू इट वन विंडो. फॉर अस वी डू रिव्यू इट डिजिटली. जो वोटिंग भी होती है कमेटी, वो हमारे वन विंडो पे डिजिटली वोट करती है. सारा एप्लीकेशन डिजिटली ही होती है. हाउएवर, you need to understand that we are not working in one area of technology. It involves infrastructure, it involves public policy, it involves technology, it involves finance. ठीक है, तो हर एक मतलब मेरे ख्याल में तो दुनिया में शायद ही कोई बंदा हो जिसको सारी ये स्किल जो है ना वो एक ही बंदे में. So we rely on internal a lot of people within the committees to do वोटिंग एंड स्कोर एन एप्लीकेशन. और वो स्कोरिंग जो है वो फिर हमारा एक वेटेड एवरेज एक फॉर्मूला है जो कि सिस्टम जो है वो उसको बना वो कैलकुलेट करके और वो एक रिपोर्ट जनरेट कर लेता है अप्रूवल्स कमेटी. सो ऑफ कोर्स ऑल डिजिटल पोर्टल्स आर ऑगमेंटेड. ऑल्दो AI अभी आया है लेकिन AI इज वेरी न्यू in public service delivery, and so far probably in 2030 I would say that artificial intelligence is evaluating based on certain rules and principles. However, आपके लिए it's one window. What is happening at the back end is actually very human centric, where each officer has a specific responsibility looking at the relevant section of your application and scoring it कि ये ठीक बना है, ठीक नहीं बना है, and they also provide comment based on which the licensing decision takes place. So for you it's going to be one window.
For us, it is a digital platform where all our officers interact and we interact with other regulators as well. Of course, when you will be importing पे वो उधर ही पोर्ट पे आ रहा होगा, उसका प्रोसेस सारा डिजिटली हुआ होगा, लेकिन उधर अप्रेजर ने फिर भी अपना टिक चेक करने हैं, बिकॉज आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तो उतनी हो सकती है जितनी वीकेस्ट लिंक हो. अब जारी बात है इंटरनली तो मैं पूरा डिजिटल हो गया और डिजिटली सारी वोटिंग भी चलती है, सारी डिसीजन मेकिंग भी होती है, इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस भी डिजिटल है. फॉर यू इट इज अ सिंगल पोर्टल, यू आर नॉट going to call and pursue and need to meet and move the file and need to know anybody, right? However, it will always remain human centric because it is a regulatory war and our systems will always have human at the back end, and this will remain as such for foreseeable future. And I believe this is complete one window for you. For us it's not one window. For us, we are re-engineering business processes to ensure that you have that ease and you don't have to visit a lot of departments and get your physical file move forward. That makes a lot of sense. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. हाँ, next year. Actually meeting मैं wanted to keep it short and Q&A में मैं रखना चाह रहा था, तो मैंने ज्यादा टच नहीं किया, बट वो प्रेजेंटेशन के अंदर सारे हैं कि कौन से ऑपरेशनल है और वहां पे यू कैन इवन प्लेस योरसेल्फ इनिशियली इन अ co-working space. So Daftar Khwa is in our tech zone in Pindi and Islamabad. मेरे co-working spaces privately available है, obviously बिल्कुल जी, co-working spaces से हम बिल्कुल familiar हैं. मेरा जो the reason why I was asking was because अगर हम as a company, मैं अगर अपने बोर्ड से बात करता हूँ यहाँ पे, जिसमें बहुत से इंटरनेशनल बॉडीज होंगी और हम अगर इसको इवन कंसिडर करते हैं विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स गोइंग टू ऑब्वियसली चार्ज अस लॉट ऑफ टाइम. और अगर हम किसी एक ऐसी चीज को डिस्कस करें जिसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो उसको आप बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन आप उसको डिस्कस ही नहीं करते. ठीक है, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, आप बोर्ड के पास वो चीजें लेके जाते हैं जिनमें थोड़ा सा वेटेज हो, जिनमें एक्चुअली कुछ सब्सटेंस हो. तो मैं इसलिए आई वुड रियली प्रेफर, और दिस इज माय फीडबैक, आगे आप इम्प्लीमेंट करना चाहें ना करना चाहें आपकी मर्जी है, बट वर्किंग विद ग्लोबल मार्केट, अभी भी पाकिस्तान में बहुत से लोग होंगे, बहुत सी आपकी अंदर बॉडीज होंगी जो नई इंडस्ट्रीज, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज से फेमिलियर नहीं है, और ये गैप तभी फिल होगा थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और इसमें सिर्फ एक इतनी सी चीज अगर आप डाल दें कि एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, बिकॉज अगर हम बिजनेस करना चाहेंगे तो हम लाहौर में करना चाहेंगे. लाहौर इज वेरी बिग. इट्स जौहर टाउन की जो ऑडियंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है डीएचए की ऑडियंस से. तो हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं हमने एलोकेट, हमने हायर उस हिसाब से करने हैं. अगर हमें ऑफिस जौहर टाउन में हम प्रेफर नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू डीएचए, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयज उस एरिया के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उस लिहाज से इट वुड बी रियली हेल्पफुल कि अगर आप थोड़ी डिटेल्स डालें प्रोजेक्ट्स की कि वो किन लोकेशंस में हैं, उनकी एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट्स क्या है. सो आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. अच्छा उमर, हमारे वेबसाइट पे द एड्रेसेस आर अवेलेबल, और आप उधर लाहौर क्लिक करके और लाहौर के अंदर जो जोन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन से कंप्लीट है और कहाँ पे स्पेस अवेलेबल है. ऑफ कोर्स वी विल, जिस तरह मैंने बताया भी, वी विल सी अ मशरूम ग्रोथ इन टेक जोन्स. मैं उसके बारे में ज्यादा बात इस वजह से नहीं कर सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर प्राइवेट प्रपोजल्स. Of course, when you are filing an application, I wouldn't be talking about it. I would say, हाँ एक Canadian company है वो आ रही है, but that's it, right? But what I am telling you is there is going to be huge mushroom growth of tech zones, and of course आप इसके अंदर दूसरे मैंने ये बिल्कुल ऑप्शन दिया कि once we do an email with a whole package, you can actually request a time with our team और हम आपको complete personal advisory देंगे based on requirements of your businesses. But in a larger audience, I would want to answer to very high-level questions in terms of regulatory processes. उसके अंदर on email you can request a meeting and we'll sit down with you. We'll understand your requirements, understand your challenges, and we will shape an advice based on your challenges, and we'll customize that solution for you. बेहतरीन, थैंक यू जी. ठीक है जी, thank you. Ajay, we are going to take
around 5 more questions जो अभी बस hands raised हैं, and then I think we can call it a session, and you can of course schedule meetings with us in response to the वो तो उसके अंदर हम पूरा कैलेंडर का वो डाल देंगे, you can request and we'll accept and schedule a meeting accordingly. तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, this is start of our engagement, not the end of it. तो अगर किसी को मौका नहीं भी मिलता, rest assured we will get in touch with you and you can get in touch with us very easily. किसका? जी सारिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बेसिकली आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 पर्टेन करता है, आपने जैसे बताया कि इनकम टैक्स पे हमें एग्जम्पशंस अवेलेबल होंगी। क्या ये एग्जम्पशन प्रोविंशियल रेगुलेशन से भी अप्लाई करती हैं, जैसे पीआरए हो गया, एसआरबी हो गया? और क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑफिस लोकेशन के पर्सपेक्टिव से है, क्या हमें लाइसेंस मिलने के बाद अपना ऑफिस रिलोकेट करना पड़ेगा या उससे पहले करना होगा? और जो लोकेशंस हैं उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, यानी कि एरियाज क्या हैं और उनको क्या प्राइसिंग है? कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए हमें। अच्छा सारिम देखें, आपके 3 सवाल हैं। एक पहला सवाल जो है वो ये है कि आपने कहा बाकी रेगुलेटर्स और उसके साथ कंप्लाइंट हैं, बिल्कुल कंप्लाइंट है, वेदर दैट बी देखिए इसके अंदर 2 किस्म की आती हैं। एक आती है कि प्रोविंशियल टैक्स कौन से हैं और फेडरल टैक्स कौन से हैं। सो फेडरल आपका जो इनकम टैक्स है ना वो फेडरल होता है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स फेडरल होता है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पंजाब में अलग है, टीपी में अलग है, उसमें हमने अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ होल प्रोविंशियल फ्रेमवर्क एंड तकरीबन पिछले 1.5 साल में वी हैव अग्रीड विद ऑल प्रोविंसेस ऑन अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क। आई कैन नॉट डिस्क्लोज उसमें क्या क्या होगा क्योंकि अभी वो बोर्ड पे प्रेजेंट होना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वो अप्रूव करना है, उसके बाद वो रेलेवेंट पार्लियामेंट से अप्रूव होना है। हाउएवर जो फेडरल है इनकम टैक्स जो मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन की वो सारा कंप्लाइंट है एफबीआर के साथ। एफबीआर का फिर पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है, उसमें भी वो सारा कस्टम्स के अंदर, पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर, स्टेट बैंक के फॉरेक्स रेगुलेशंस के अंदर वो सारा कुछ हुआ है। प्रोविंसेस का हम सेकंड फेज में लेके जाएंगे और प्रोविंसेस में आप पे मेनली 2 पड़ते हैं, एक प्रॉपर्टी टैक्स पड़ता है और दूसरा आप पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। रिमेनिंग ऑल टैक्स सब्जेक्ट्स आर फेडरल। वो अभी नहीं हुए, वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस अपने पैकेजेस करेंगे। सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। बलोचिस्तान विल गो ओवरबोर्ड in offering incentives, probably cheaper land, probably cheaper infrastructure because they want to attract technology companies. ठीक है, Punjab might not because they are more mature. Sindh might कि भाई जो हैदराबाद या सक्कर में है उधर के लिए डिफरेंट टैक्स के लॉज फॉर एसटीजीज ले है, और सो ये प्रोविंसेस के ऊपर है। हमने प्रोविंसेस को ये कहा है कि भाई वी विल इनेबल कंपटीशन, जिस तरह अमेरिका में स्टेट्स कंपीट करती हैं आजकल, ह्यूस्टन टॉप पे है, ठीक है, सियाटल से मूवमेंट हो रही है, वॉल स्ट्रीट सॉरी सिलिकॉन वैली से जा रहे हैं टेक्सास, क्योंकि टेक्सास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां फोकस हुआ हुआ है और वहां पे स्टेट कंपीट करते हैं पॉलिसीज पे। तो हमने कहा है जी प्रोविंसेस कंपीट करें ऑन इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल इंसेंटिव्स। हाउएवर provinces under 18th amendment are now autonomous in introducing sales tax on services, land और आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस हैं, ये पैकेज इन सारा 6-8 महीनों में हमारा ऑपरेशन हो जाएगा और विल एडवर्टाइज एंड इंशाल्लाह विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। जिसने भी आज रजिस्टर किए, बाय द वे विल पुट देम इनटू आवर न्यूज़लेटर। हम महीने का न्यूज़लेटर भी इशू करेंगे, उसके अंदर आपको जोन्स के बारे में बताएंगे, नए जोन्स कौन से आए हैं, ऑपरेशनलाइज कौन से होंगे, सो दैट एवरी मंथ यू आर अप टू डेट on what is happening with STZs. जी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, ही हैज अ क्वेश्चन, आमिर सलीमी साहब जी। Sir, if you can unmute your mic. सलीमी साहब अनम्यूट कर दें, या वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन, तब तक वो अनम्यूट कर दें, नेक्स्ट पे ले लेते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपने रहता है अभी। अच्छा सॉरी सारिम, बताएं सेकंड क्या था?
जो मैंने कहा था लोकेशन के पर्सपेक्टिव से था कि हमें क्या रिलोकेट अभी करना है या लाइसेंस के बाद करना है मिलने अच्छा, के बाद, ये और जो प्राइसिंग वगैरह उसकी क्या वो हमें किस तरह से उसका करना पड़ेगा होगा? देखिए, लोकेशन, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है एंड यू वांट टू रिलोकेट पार्ट ऑफ योर बिजनेस टू एसटीजी, वो भी हम अलाउ करते हैं। आपने सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहना है कि जी मेरे सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स बनाए जो बिजनेस मेरा एसटीजी में है। सो लेट्स से यू हैव ठीक है। 100 people and 30 people you want to relocate to an STZ, we also allow part of business to be relocated to STZ. ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा जो है वो आपका आ गया रेंटल्स। रेंटल्स चेंज होते हैं बहुत ज्यादा लोकेशन वाइज। सो व्हाट यू माइट गेट चार्ज्ड फॉर लेट्स से इस्लामाबाद के अंदर हमारा B17 के अंदर अभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ऑनलाइन आई है 1 मिलियन स्क्वायर फीट की। अब वो रेंटल जो चार्ज करेगा दैट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप व्हिच इज ऑलमोस्ट 91% फुल। ठीक है, सो दैट वुड बी एट हायर एंड। सो ये टैक्स जोन टू टैक्स जोन है। हमारा अभी रोल ये है कि अगले 12-18 महीने में हम इतनी कंपटीशन ला सके कि ये रेंटल पे भी एक दूसरे के साथ compete करना स्टार्ट कर दें। सो श्योर शॉर्ट क्विक वो नहीं है, बट once even in Lahore if you want to relocate, we will put you in put you in touch with the project director of zone developer, and जो रेंटल के बातें हैं और जो बिजनेस से रिलेटेड बातें होते हैं वो एसटीजी बिल्कुल भी उसमें पार्टी नहीं बनता। और वो अपने उस पे आपकी नेगोशिएशन पे कुछ अच्छे प्राइसिंग ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। we don't sort of intervene into it. However, we are recognizing out the fact that there are more technology zones that are required, and our focus is to roll out more tech zones in next 18 months so that you have more spaces where you can negotiate and has more options to place your business. Thank you. Thank you. जी, आमिर सलीम साहब आप म्यूट है, हमने अलाउ किया, यू हैव टू अनम्यूट। कह रहे हैं कि आप लोग बाकियों के साथ कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, किसी और को मैं को ले लो। जी उमर साहब, अनम्यूट योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। बेसिकली मेरी कंपनी का नाम है द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और हमारे ऑफिसेज जो हैं चाइना में हैं और इसके अलावा यूके में है एंड मिडिल ईस्ट में है। हम बेसिकली चाइना में 2010 से जो है अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इस चीज़ में सारी चीज़ों में थोड़ा सा टेक्निकली कंफ्यूज हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज ही आप लोगों के साथ जो है रजिस्टर्ड होकर और ये फैसिलिटीज ले सकेंगी? क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली लॉजिस्टिक्स एंड जो है कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेरी ये जो क्वेश्चन आंसर जब स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमने एचएस कोड गलत जो है शायद वो देख लिया था। वो बेसिकली इंटरनेशनल एचएस कोड कुछ और होता है, आपकी कंट्री एचएस कोड डिफरेंट होता है। ऐसे ही तो है, हमारी बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारी जैसी जो कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उन प्रोजेक्ट्स को चीज़ें तो इंपोर्ट करनी है एट एनी कॉस्ट। तो हमारी जैसी जो कंपनियों की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो कोई टेक्निकली टैक्स से रिलेटेड कंपनी नहीं है, लेकिन इस तरह की कंपनी की रिक्वायरमेंट जरूर है जोन्स के अंदर। उमर साहब, ये जितने लोग हैं ना, ये दीज आर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। ठीक है, तो देखिए मार्केट, ये तो अब एक नई मार्केट बन रही है ना। सो टेक्नोलॉजी जोन्स is a new market that is emerging in Pakistan. I'll just give you a high level figure कि the existing 16 zones के अंदर assets जो हमारी jurisdiction में आते हैं infrastructure में, that now exceeds $600 million. ठीक है, अब they are housed by around 25,000 technology resources and around 150 technology companies. अब ये 150 टेक्नोलॉजी कंपनीज कल को 5,000 टेक्नोलॉजी कंपनीज होंगी, 5 लाख लोग होंगे। तो ये सारे आपके क्लाइंट्स है, हर किसी ने इंपोर्ट करना है, हर किसी ने वो करना है, बट we don't facilitate market players. For you, this is a new business segment where you need to approach technology parks and potential technology companies where, and also become part of their application process where you can offer services कि हम आपको जो if you are a technology company and you want to become a zone enterprise, so we facilitate in providing list of HS codes that you may require. So you have a supporting business. We don't directly sort of license or all, but of course we want players like you who can assist in this technical
at technical level, and you can create your whole other business segment based on this. इसके ऊपर सर हम आप लोगों के साथ कोई MOU जो है साइन कर सकते हैं? हम किस तरह जो है इन सारे जो जितने भी लिस्टेड जो आप लोगों के पास कंपनीज हैं, हम उनको अप्रोच किस तरह करेंगे? उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल वे रहेगा? उमर साहब, we don't sign MOUs on market के जो ecosystem है या services के ऊपर. We don't sign MOUs because we are a regulatory body. We cannot promote a single company. I'm sure there are other hundreds of companies who offer similar services like yourself. तो उसके अंदर ये है कि आप हमारे सेशंस में आए, ये बड़े सारे जो आपके आसपास लोग हैं, सारे आपके लीड्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, and you can start marketing it and go and build a segment by understanding our compliance, talk to PSW, talk to the relevant customs agents. You yourself are a custom क्लियरेंस एजेंट. तो मतलब आप अपनी स्किल बनाए ना कि मार्केट में लोग आपके पास आए. हम किसी स्पेसिफिक कंपनी जो कि ये सर्विसेज ऑफर कर रही है या इकोसिस्टम के अंदर या टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर कर रही है, उनके साथ MOU वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर रेगुलेटरी, वी कंट्रोल मार्केट्स, नॉट promote a certain company to the market. ओके, टेक्नोलॉजी जोन में हम लोग अपनी कंपनी जो है रजिस्टर्ड तो कर सकते हैं ना? मतलब अगर हम उस पे बिल्कुल कर सकते हैं. यू कैन, देखिए आप हमारा लाइसेंस नहीं ले सकते, बट हमने अलाउ किया हुआ है इन एनी टेक्नोलॉजी पार्क 80% of the tech infrastructure has to be used by technology companies and 20% by general services such as custom clearing agents, chartered accountants, lawyers, restaurants, hotels. तो ये सारा वो 20% में आ जाता है. तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं. बड़े सारे टेक पार्क्स में हमारे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उन 20% में बैठे हुए हैं, असिस्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज विद देयर एप्लीकेशंस. बेहतरीन होगी सर. सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू वेरी मच. जी उमर, बस आपका एक क्वेश्चन रहता है. हो गया? मेरा हो गया. मेहताब जी, मेहताब साहब आप अनम्यूट कर दें. वी हैव अलाउड अनम्यूट. आई थिंक कोई उमर साहब अगर अनम्यूट हो सकते हैं ठीक है, वरना लेट्स कॉल इट टुडे. वी कैन हैव अ सेपरेट कॉल देन. आमिर सलीमी साहब, डू यू वांट टू से एनी क्लोजिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग द सेशन? अनम्यूट है वो, आमिर सलीमी साहब ने करना. चलिए जी, आई थिंक वो हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ज्वाइन किए थे. वी वांटेड हिज क्लोजिंग रिमार्क्स, बट आई थिंक with technology, no matter how advanced it is, कुछ ना कुछ technical fault at any time आ सकता है. This is a reliance that we have, but I'm glad ji, thank you very much for session and for a good two hour session, and thank you for the questions and taking out the time, and rest assured ji, we'll be more than facilitating. Consider us market development ji is one of those departments which secure investors and zone enterprise interests and technology sector interests. तो उसके अंदर मेरा जो KPI है वो ये है कि you are our happy client and you are able to understand our requirements, fulfill the application, and the market development department will work day and night to ensure कि आपको वो facilitation मिल सके. थोड़ा सा वो ये है कि market development STZA as a whole is a high performance lean team. तो जो है हमारे मार्केट डेवलपमेंट में टोटल अलॉटमेंट जो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन एडवाइजरी है उसमें 2-3 लोग हैं, एंड वी हैव कंसिडरेबल नंबर्स इन हंड्रेड्स वेयर वी एडवाइज. तो कभी कभी 24 घंटे 48 घंटे डिले आ सकते हैं. स्केड्यूलिंग 1 वीक में हम कर देते हैं, बट बेयर विद अस. यू कैन ऑलवेज रिमाइंड अस. अगर कोई इंसान है कभी कभी मिस हो जाता है कॉन्वर्सेशन, हाँ, बट ऑलवेज ईमेल अस एंड पुट अ सॉफ्ट रिमाइंडर, ताकि अगर 2-3 दिन में आपको रिस्पांस नहीं आता तो पुट अ सॉफ्ट रिमाइंडर so that we are able to sort of put in our system. Although we have a very good system in terms of जब आप ईमेल करते हो सारा एक जर्नी है जो कि हमारे इंटरनली फॉलो होती है, लेकिन still people are open to
मिस्टेक एंड वो एक सेइंग है कि टू अर्र इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो हो जाता है, तो रेस्ट एश्योर्ड आप रिमाइंड कर दिया करें एंड इंशाल्लाह विल बी मोर देन available to facilitate you. With this, Chi, thank you very much, and let's call it a day. Thank you.